Hello students, this is Akansha Mishra. I hope you all are doing good. In today's class of class 4 GK, we are going to talk about the solar system. So what we are going to do in this class, we are going to talk about our solar system. We are going to revise this. Okay, now see this. Our solar system. Okay, this is what we are going to do and this is what we are going to revise. Now come to the chapter. So first we are going to do, the first thing is our solar system. In our solar system is, first we are going to talk about what is solar system. So basically in the solar system you will find in the center there is the sun, okay, and there are 8 planets, okay. How many? There are 8 planets, okay, and their moons, they all orbit around the sun, right? So 8 planets and their moons orbit around the sun. This is what we call solar system. This is how our solar system created. So we can say 8 planets and their moons. Now we will talk about one by one all the 8 planets. What is their specialty? With the questions we are going to do this. See, our first question is, okay, let's talk about the planets first. The first is Mercury, okay. The first is Mercury and the second planet is Venus. The second planet is Venus. The third one is Earth, okay. The third is Earth. Fourth planet is Mars, okay. This is what you can consider as sequence. Fifth is going to be Jupiter. Sixth is going to be Saturn. Seventh is Uranus, and the 8th is Neptune. Okay, so this is the sequence. First planet is Mercury, second planet is Neptune, third is second planet is Venus, third planet is the Earth, fourth is Mars, and then the Jupiter, then the Saturn, and then the Uranus, and then the Neptune. So these are the 8 planets, okay. Many planets have the moons also, and some of them don't have the moon, and they all orbit around the sun, okay. So this is the total number of planets we have. So हमारे पास टोटल हमारे कितने planets हैं? So there are 8. पहला है हमारा Mercury, second है हमारा Venus, third है Earth, fourth है Mars, fifth number पे है Jupiter, and this is the Saturn, then the Uranus, and then the Neptune. Now we will talk about them more with the questions. Questions करते हुए हम इसे solve करेंगे. Now, the first question, it is the smallest planet in the solar system. It is the smallest planet in the solar system.
So what I am going to do, I am going to mention all the planets here, and then we will pick one by one according to the questions. Okay. So what was the first? It was Mercury. What was the second? It was Venus. And then Earth. And then what was the planet? Name of the planet was Mars. Okay. And then Jupiter. Next one was Saturn. After this, Uranus. And then the Neptune. Okay, there was one more planet, एक और planet था प्लूटो के नाम से, बिकॉज उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है एक प्लानट के लिए, वो उसके पास नहीं थी क्वालिटीज, सो दैट्स वाई 2009 में उसे रिमूव कर दिया गया. 9 प्लैनेट्स की जगह 8 प्लैनेट ही रह गए. Okay, so these are the 8 planets. Now, it is the smallest planet in the solar system. So सबसे छोटा planet कौन सा है solar system का? So वो है हमारा Mercury. Okay, कौन सा planet है? वो है हमारा Mercury. Okay, now come to the next one. So among all the planets, हमारा सबसे छोटा planet है मरकरी. इसे हिंदी में कहते हैं बुध. ओके, बुध ग्रह. Now the second question is, it is the planet closest to the Earth. It is the planet closest to the Earth. कौन सा planet है जो Earth से closest है? ओके, कौन सा planet है वो? So वो planet हमारा है Venus. ओके, कौन सा planet है? Venus. Now this is the planet, and it is also named. It is the planet which is most close to the Earth. और कोई इसका close हमारे इस सारे planets में से Earth के और कोई इतना close planet नहीं है जितना कि Venus है. That's why हम इसे mention करते हैं closest planet. Okay, to the Earth. So ये था हमारा शुक्र ग्रह. Now come to the next. The next question is, it has water. It has water on its surface and oxygen in its air. Okay, now see this. ऐसा कौन सा planet है, ऐसा कौन सा planet है जिसके सरफेस पे वाटर है एंड वहाँ की हवाओं में ऑक्सीजन पाया जाता है? So among all the planet, you know which planet is going to be there who provides water and the oxygen both. जहाँ पे लाइफ है वो कौन सी planet है? वो है अर्थ. ओके, वो है हमारा अर्थ. सो कौन सा ग्रह है? पृथ्वी. ये हमारा ग्रह है जहाँ पे हमें पानी, हमारे पास पानी भी है एंड हमारे पास ऑक्सीजन भी है जिससे कि लाइफ एग्जिस्ट करती है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question is, it is the largest planet. It is the largest planet and is so large
that and is so large that all of the other planets in the solar system could fit inside this. Could fit inside it. Now, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और वो इतना बड़ा है कि जितने भी अदर प्लैनेट्स हैं, ओके, मरकरी, वीनस, अर्थ, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, मार्स, कोई भी प्लैनेट हो वो इसके अंदर आ सकता है, इजीली फिट हो सकता है इनके अंदर, ओके। सारे के सारे प्लैनेट जो है हमारे वो एक साथ भी इसके अंदर फिट हो सकते हैं। सो सबसे बड़ा प्लैनेट हमारा वो कौन सा है? वो हमारा प्लैनेट है जुपिटर, ओके। विच प्लैनेट? वो प्लैनेट है हमारा जुपिटर। नाउ इस प्लैनेट को क्या कहते हैं हम हिंदी में? जुपिटर को कहते हैं बृहस्पति, ओके। सो व्हाट डू वी कॉल दैट प्लैनेट इन हिंदी लैंग्वेज? दैट इज बृहस्पति। ये है हमारा बृहस्पति ग्रह, ठीक है। सो ये सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, कि इतना बड़ा है कि सारे के सारे प्लैनेट इसमें इजीली इसके अंदर फिट हो सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। Our next question is, this ringed planet is also known as the jewel of the solar system. Okay, jewel of the solar system. Now, ये ऐसा प्लैनेट है जिसके आसपास आपको रिंग्स मिलेंगी, जिनके चारों ओर आपको रिंग्स मिलेंगी। अब जो ये रिंग्स होती हैं इस प्लैनेट के दोनों साइड पे, जस्ट लाइक दिस, इफ दिस इज द प्लैनेट, यू विल फाइंड रिंग लाइक दिस, ओके। यू विल फाइंड द रिंग लाइक दिस। इस तरीके की जो रिंग होती है इसके चारों ओर होने के कारण इसे क्या कहते हैं? इसे जेवल ऑफ द सोलर सिस्टम कहते हैं। अब ये कौन सा प्लैनेट है जिसके साइड्स पे आपको ऐसे रिंग्स मिलेंगे? सो वो एक ही प्लैनेट है, वो प्लैनेट है हमारा सैटर्न। कौन सा प्लैनेट है? वो प्लैनेट है हमारा सैटर्न, ओके। कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह है। इस प्लैनेट के चारों ओर आपको रिंग्स मिलेंगी, इसी वजह से हम इसे अपने सोलर सिस्टम का जेवल कहते हैं, ओके। जस्ट लाइक द जुपिटर हैड द क्वालिटी कि सबसे बड़ा प्लैनेट है, इसके पास क्वालिटी क्या है कि इनके चारों ओर रिंग्स हैं और इसे जेवल ऑफ द सोलर सिस्टम कहते हैं, ओके। ये है शनि ग्रह। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। It is the windiest planet in our solar system. It is the, so our next question is, it is the windiest planet. Okay, windiest planet in our
सोलर सिस्टम। ओके, हमारे सौर मंडल का ये सबसे ज्यादा विंडिएस्ट प्लैनेट है, जहाँ पे कि आपको हमेशा तूफान या आंधी चीजें देखने को मिलेंगी, जहाँ पे सिचुएशन हमेशा ऐसी रहती है। दैट प्लैनेट इज गोइंग टू बी विच वन? सो दैट प्लैनेट इज द लास्ट प्लैनेट, दैट इज नेपच्यून। सो कौन सा प्लैनेट है वो हमारा? वो है हमारा नेपच्यून। ओके, सो नेपच्यून। इस प्लैनेट में हमेशा आपको तेज हवाएं देखने को मिलेंगी, एंड बाकी अदर प्लैनेट से आप अगर इसे कंपेयर करोगे, सो दिस वन इज द विंडिएस्ट वन। दैट्स व्हाई दिस वन इज द विंडिएस्ट प्लैनेट of our solar system. Okay, now come to the next thing. Next question is question 7. It often appears bright, and reddish. In the night sky. ओके, अब ये कौन सा प्लैनेट है हमारा, जो कि क्या होता है, जो जिस तरीके से हमारा अर्थ है, हमारा जो अर्थ है वो एक ऐसा प्लैनेट है, जब आप उसको स्पेस से देखोगे सो इट सीम्स इन ब्लू, राइट? ब्लू कलर में दिखता है। ये क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ पे जो हमारा मैक्सिमम पार्ट है वो वाटर उसमें है। दैट्स वाई वाटर के कलर के कारण, वो रिफ्लेक्शन के कारण हमें ब्लू दिखता है। ओके, नाउ अब इसकी बात करते हैं। ऐसा ही एक ग्रह है जो कि रात में चमकता है, एंड वो कैसा दिखता है? वो रेडिश दिखता है, वो लाल कलर का दिखता है। सो वो किस ग्रह में वो क्वालिटी है? सो वो ग्रह है हमारा मार्स। ओके, अगर आप हमारे ग्रह की बात करो अर्थ की, सो वो स्काई ब्लू या ब्लू दिखता है। एंड अगर इसकी बात करें, इसलिए उसको स्काई ब्लू हमने कलर नाम ही दे दिया है। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट दिस रेडिश कलर, जो ये रेडिश आता है वो कौन से ग्रह में आता है? वो आता है हमारा मार्स पे। ओके, सो कौन सा ग्रह है? ये है हमारा मंगल ग्रह। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो हमने मरकरी कर लिया, वीनस कर लिया, अर्थ कर लिया, मार्स भी कर लिया हमने, राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. So the question number 8 is saying this was the first planet that was found with the aid of a telescope. With the aid of a telescope, it spins on its side. It spins on its side. अब कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसे पहली बार टेलीस्कोप की सहायता से, टेलीस्कोप के माध्यम से देखा गया था? ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसे फर्स्ट टाइम टेलीस्कोप के माध्यम से क्या किया गया था? टेलीस्कोप के माध्यम से देखा गया था। सो वो प्लैनेट हमारा कौन सा है? एंड जो इसकी ये क्या करता है? ये अपनी साइड पर स्पिन करता रहता है। ओके, ये अपनी साइड पर स्पिन करता रहता है, घूमते रहता है, एंड देन
what it is, the next quality is what, कि ऐसा planet, पहला planet है जिसे हमने टेलीस्कोप के थ्रू देखा था. So वो हमारा कौन सा planet है? वो planet है हमारा यूरेनस. वो कौन सा planet है? वो है हमारा यूरेनस. So ये था यूरेनस planet. अब हमने जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, लास्ट में हमने यूरेनस को भी कंप्लीट कर लिया. राइट, ये हो गए हमारे सारे के सारे प्लैनेट्स. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस थिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर थिंग, जो आपका जुपिटर और मार्स प्लैनेट है. बिटवीन द जुपिटर एंड मार्स आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट्स मिलते हैं. दिस इज जुपिटर, ओके, दिस इज मार्स, दिस इज मार्स, दिस इज द सन, दिस इज द मार्स, दिस इज द जुपिटर. आपको यहाँ पे एक बेल्ट मिलती है, ओके, जो कि रॉक्स की हो सकती है, गैसेस की हो सकती है. सबसे मेन एक बेल्ट होती है जो कि किसके नाम से जानी जाती है? जो कि हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जानी जाती है. ये हमारी जो बेल्ट है हम इसे जानते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से. So this is how we have completed our solar system. We have talked about all the 8 planets and their qualities. In the next class, we are going to talk about the next things. So for now, we are done. I will meet you in the next class. Thank you.